Very good morning, dear student. Welcome to the class point. Dear student, today taking the next chapter, we are discussing, as you know, in the previous video also we see how to solve the important questions from the different chapters. So, dear student, today we see how to solve the important question or what are the important questions from the chapter matrices and determinants. So, in this unit we take the important as well as the questions which are odd type high order thinking questions we have to discuss and solve. So see, if A equal to matrix Aij 2 by 2, this is the representation of a matrix form, right? If A equal to square matrix Aij 2 cross 2, which we have write in this standard form of a matrix, this is symbol. Matrix such that now we are also given the property of a particular or general element Aij equal to I square plus j square. Write matrix A. Means you have to write the elements of the matrix A. How to write the element of matrix A, that we have to see. So as you know that this matrix is of 2 by 2 order. So first of all we have suppose the given matrix in solution. Let matrix A. Now we know that we are writing general form A11, A12, A21, A22. This is the matrix we require. So our target is to find its element. Clear? So this is the required matrix. We want to find this matrix, but here we have to find its element, which we are supposing here A11, A12 like this. So we can use this formula. ये आपको formula आपको use करना है. So here A11 means I is 1, J is 1 is equal to 1 square, 1 square. That is 1 plus 1, 2. Means I 1 है 1 का स्क्वायर, J 1 है तो J का स्क्वायर, तो 2 आ गया. इसी तरह से A12 I 1 है तो 1 का स्क्वायर, J 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो ये आपका 5 आ गया. ठीक. इस तरह से आपको हर एक एलिमेंट को फाइंड करना है. दिस सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21 I2 है J1 है तो 4 plus 1 ये 5 आ गया. इसी तरह से A22 है I2 है और J2 है तो 4 plus 4 8. तो ये हर एक एलिमेंट आ गया है. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इन द फॉर्म. सो A इक्वल टू क्या आ जाएगा? Hence A इक्वल टू A11 that is 2, A12 5, A21 that is 5 and A22 that is 8. So in this way we can find the value of the matrix A. Now similarly second question is also similar to this one. Write down question second. What's the construct 2 by 2 matrix? You have to again write a matrix of order 2 और it is a square matrix आपको लिखनी है 2 by 2 such that A equal to Aij, where A whose element are given by whose element are given by. तो इसके एलिमेंट को हम क्या लिखेंगे? Aij. गिवन फॉर्मूला और Aij डिफाइंड बाय I minus j होल स्क्वायर बाय 3. I minus j होल स्क्वायर बाय 2. तो ये सेम प्रोसेस आपका आएगा, बस आपको आइडेंटिफाई ये चेंज हो गया फॉर्मूला का, इसकी प्रॉपर्टीज ने चेंज कर दी. राइट. So what we write here, we can write in solution. Let matrix A again 2 by 2 order
That's why A11, A12, A21 and A22. This matrix we have to write. Clear? Is the required matrix of order 2 by 2. So now we have to find values of each element A11. तो using this property, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है आई जे। आई यहाँ पर 1 है और जे भी 1 है, तो इसकी A11 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1 माइनस 1, तो ये 0 आ जाएगी। इसी तरह A12, सेकेंड एलिमेंट हमारा A12 है, तो आई की जगह 1 है और जे की जगह 2 है, तो इसको रिप्लेस कीजिए 1 माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 3, तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे प्लस, तो ये एलिमेंट 1 बाय 3। इसी तरह से A21 I2 है, तो 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 3, तो इसको सॉल्व करोगे 2 1, तो ये भी 1 बाय 3 आएगा। और A22 तो 2 माइनस 2 बाय 2, तो ये आपके 0 आ जाएगा, राइट। So in this way you can find all the element and then put the value in the supposing matrix. तो A इक्वल टू क्या आ गया, A11 0, A12 1 by 3, A21 1 by 3, A22 0, तो ये required matrix. So dear student, in this way you can find the matrix. Question number 3 देखिए, if a matrix is given as 2 3 4, so this is the only row matrix or column matrix. This is only one column is given. Find, you have to find A into A transpose. A into A transpose, where A power T means transpose of matrix A. So as you are writing dash, here it is written capital T, right? You can write where A transpose represent transpose of matrix A. तो हम लोग A डैश भी लिखते थे या A ट्रांसपोज, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो A पावर कैपिटल T, राइट। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना। तो ट्रांसपोज क्या होता है, here A इक्वल टू 2 3 4, तो A ट्रांसपोज यानी रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, ठीक है ना। तो अब इसमें जैसे फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो है सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो देन सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड। तो आपके पास में ये मैट्रिक्स आ गई। तो शॉर्ट कर लेता हूं दिस। So value of A transpose is 2 3 4। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना है A into A ट्रांस, ये बहुत आसान है, लेकिन 90% बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, पता है आपको, ये हमने कई बार टेस्ट कर लिया है। 95% जिन बच्चे के आ रहे हैं वो भी गलत कर देता है, क्योंकि वो क्या करता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3/3 मैट्रिक्स में ले लेता है इसको, राइट। तो यहां पर क्या होगा, कंफ्यूजन क्या है, 2 से 2 को कर लेगा 4 आ गया, 3 से 3 को करेगा 9 आ गया, 4 से 4 को 16, सर हो गया आंसर। जबकि ऐसा नहीं है, हमारा रूल क्या है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, दैट इज द फर्स्ट। सो 2 into 2 4, then first row with the second 2 into 3, then first row with third column
8। तो ये पहली रो कंप्लीट हुई है। इसी तरह से 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12। इसी तरह से थर्ड रो को करना मल्टीप्लाई 4 into 2 8, 4 into 3 12, 4 into 4 16। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। if A equal to, we are given matrix A 2 3 1 5 and B matrix B दे रखा है आपको, सॉरी B ट्रांसपोज दे रखा है, B ट्रांसपोज 1 3 2 5 1 3 2 2। find, you have to find A plus 3 time of B transpose. Then also say where B transpose B dash represent the transpose of B। तो यहाँ B dash का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स B। तो आपको निकालना क्या है? A plus 3 into 3B whole transpose, we have to find whole transpose। A plus 3B into whole transpose, आपको whole transpose निकालना है। तो यहाँ पर A दे रखा है लेकिन B नहीं दे रखा, तो पहले आपको B निकालना पड़ेगा। Here solution right, here A equal to already given, that is 2 3 1 5 and B transpose is given, that is 1 3 2 4। Therefore B will be, as you know that transpose means interchanging rows and column। अब फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड। तो ये आपका B आ गया। ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज दैट इज गिव्स यू द मैट्रिक्स B। क्लियर? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमको पता क्या है B है, उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स that again given the matrix। So in this way you can find this one, correct? Now see, we need A plus 3B। तो पहले हम क्या निकालेंगे? A plus 3B। You add matrix A with the 3 time of matrix B, that is this 1 2 3 4। So as you know that मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड। अगर किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई। देन यू हैव टू सी 2 3 1 5 प्लस, अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12। अब दो मैट्रिक्स को ऐड है, एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 2 और 3 को ऐड किया 5, 3 plus 6 9, 1 plus 9 10, 5 plus 12 7। तो ये तो वैल्यू किसकी आई है? A plus 3B की। अब हमको क्या चाहिए? इसका ट्रांसपोज। तो therefore A plus 3B whole transpose। तो इसका 5 9 10 17 इट्स ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मीन्स अगेन रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इनटू सेकेंड कॉलम। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो व्हाट विल वी गेट? द वैल्यू ऑफ A plus 3B whole transpose equal to matrix first row 5 10, second 9 and 17। clear? So in this way you can find। next is find the value of x
find the value of x. You have to find the x for which the matrix, ये भी क्वेश्चन कई बार आया बोर्ड में, for which matrix, now matrix is given 1 plus x 7, 3 minus x 8 is singular, मैट्रिक्स। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट इज 0, देयर इट इज ए सिंगुलर, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज नॉट 0, देन इट इज नॉन सिंगुलर। तो ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सो यू कैन राइट हियर मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर matrix will be singular if corresponding determinant is 0। जो करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट होगी वो 0 होगी या उसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसका करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग मींस ऑफ द सेम ऑर्डर containing the same element, this should be 0। now this is 2 by 2 determinant, 2 by 2 order determinant, and you know that how to solve this? corresponding element will be क्रॉस मल्टीप्लाई भी, क्लियर? तो इसको 2 by 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करें? डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल। सो 8 minus 7 into 3 minus, so this is 8 plus 8x minus 21 minus plus 7, so 8x plus 7 15 equal to 21 minus 8। तो ये कितना हो जाएगा? 11 में से 8 करोगे 3 1, so x equal to 13 upon 15। so dear student, you get the answer। तो जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स का दे रखा है तो आपको करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकालना है और उसकी वैल्यू 0 पुट कर देनी है, दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत आसान है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे बनता है। अभी ऑब्जेक्टिव आएंगे तो वो भी इसी में से आएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन तो इसका आना फिक्स है लगभग, और सिंगुलर मैट्रिक्स, करेक्ट? नेक्स्ट वी हैव टू राइट द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। write the adjoint of matrix A। A equal to, that will be 5 4 3 1। तो यहाँ पर हमने एक डायरेक्ट मेथड बताया था। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना ताकि टाइम की बचत होगी आपको, ठीक है ना? अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट निकालना है तो हमको कोफैक्टर और ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर निकाल देंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या बताया कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज हो गए। जो भी साइन दे रखा है उसका अपोजिट, अगर प्लस दे रखा है तो माइनस और माइनस दे रखा है तो प्लस, राइट? तो मैं अगर डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या होगा इसका आंसर? द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू, तो ये दोनों एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, 1 की जगह 5 और 5 की जगह 1 आएगा, और इन दोनों के साइन चेंज होगी, तो 4 का प्लस का माइनस और 3 का माइनस।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिल कर देता हूं। द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1 माइनस 4 माइनस 3 5। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। हालांकि सिंपल है लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन सिंपल भी देने पड़ते हैं। 20% आपका पेपर बहुत सिंपल होता है, कोई भी बच्चा कर सकता है अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ व्हाट कंडीशन इज गिवन हियर x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 into x to y इक्वल टू -2 9, राइट। तो इसमें आपको यूज द अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का हम लोग अलजेब्रा यूज करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को है वो सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, हियर x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 इंटू x, इक्वेशन हम लोग वापस जो दे रखा वही लिख दिया हमने सॉल्यूशन में। अब इस पे क्या करना है आपको, ये तो आपका रो मैट्रिक्स ही रहेगा x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये स्केलर है जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3x और ये 6y इक्वल टू -2 9। अब लेफ्ट साइड का है वो क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो आपको डायरेक्ट एडिशन करना है। तो x स्क्वायर माइनस 3y फर्स्ट रो, x स्क्वायर माइनस 3x एंड सेकेंड y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल। अब दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। If we are given two matrix, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो प्रॉपर्टी क्या है, corresponding elements are also equal. If two matrices are given equal, then corresponding. So what we can write? First element of this is this, and for this -2. So that is x square minus 3x equal to -2 and y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 9। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए, आपको सॉल्व करने आते हैं। वी कैन सॉल्व दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देन आफ्टर सॉल्विंग मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 1 और 2 आएगा और y आपका रूट्स आएगा 3 प्लस माइनस 3 रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व नहीं की है, आप कर सकते हो, 10 में पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो और स्पेलिंग द पेंडेंट टर्म से भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, ऑल दी क्वेश्चन वी आर इंक्लूडेड इन 1 मार्क्स। ये सब 1 मार्क्स के है, इसमें से कोई क्वेश्चन नोट भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k what value of k the matrix which is given k2 3 4 k2 3 4 has no inverse, has no inverse।
इसका इनवर्स नहीं है। तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं है तो क्या होगा। तो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी, इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉन सिंगुलर दैट इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ये हमने पढ़ा। तो हमने कंडीशन में क्या कहा था कि नो इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहां पर हम लोग हमेशा ये लेते थे इनवर्स के लिए, फॉर इनवर्स। अगर किसी का इनवर्स निकालना है तो हम कहते थे द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर लेते थे, यानी कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तभी हमारा इनवर्स था। अब ये उल्टा है नो इनवर्स। तो फॉर नो इनवर्स डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर, तो वही कहानी है, मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका इनवर्स नहीं है। तो इसने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स, यानी मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी। तो बहुत आसान हो गया, बस ये पॉइंट समझना था। हियर a इक्वल टू k 2 3 4 has no inverse, that is value of the corresponding determinant is 0। तो corresponding determinant की वैल्यू रख दीजिए, determinant a determinant k2 3 4 is equal to 0। now solve determinant, cross multiply, 4k equal to 6 or k equal to 6 by 4, which is 3 by 4. So in this way we can get the value of k, which is 3 by 2, correct? So this is a very important question. One more question, see next. If a equal to, if matrix A is equal to cos alpha minus sin alpha and cos alpha, this is given matrix A. Now problem what state that A plus A transpose, this is also given, A plus A transpose equal to I. I means identity matrix or unit matrix, you can say. Find the value of alpha. तो आपको क्या करना है, find, ये भी important क्वेश्चन है, find the वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये भी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कई बार, और भी है ये। सो वी कैन से हियर इन सॉल्यूशन, हियर मैट्रिक्स ए दैट इज cos alpha minus sin alpha, then we have sin alpha and cos alpha, then A transpose will be, what is the transpose of A? That rows and column are interchange. So first row convert into first column. So cos alpha minus sin alpha. ये जो फर्स्ट रो थी वो हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दी। इसी तरह से सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम में कर दी। तो sin alpha और cos alpha. Now by the given condition, what condition is given? Now by the given condition से A plus A transpose equal to 1. तो put the value. A means cos alpha minus sin alpha
and sin alpha and cos alpha. This is the A. Plus A transpose means this matrix we write. So cos alpha, sin alpha, minus sin alpha to cos alpha equal to identity matrix, that is 1 0 0 1 of 2 order, right? Matrix of order same. So 1 0 0 1. This is given. Now what we see on the left hand side, there is addition of the two matrix. तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, corresponding एलिमेंट को ऐड करेंगे. So cos alpha plus cos alpha, 2 cos alpha, minus sin alpha plus sin alpha 0 हो जाएगा, ऐड करोगे माइनस प्लस. Then sin alpha minus sin alpha ये भी 0 हो जाएगा. Cos alpha plus cos alpha, that is 2 cos alpha. Now this is equal to the identity matrix 1 0 0. Now see dear student, here both the matrix are equal because there is a equal to sign between these two. इन दोनों के बीच में equal to sign है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों equal है. Correct? Now if these two matrices are equal, then according to the definition of two equal matrices, their corresponding elements should be same or equal. तो इनके अब दोनों साइड से एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे. 2 cos alpha equal to 1, 0 is 0 already equal, 0 is 0 already equal to cos alpha. So that is same. So we may write here 2 cos alpha is also 1. Now our target or aim is to find the value of alpha. So here see, cos alpha is equal to 1 by 2. This is also same value, so no need to write again, or you may write. So cos alpha equal to 1 by 2. Now we move for the trigonometry. At what value the cos is 1 by 2. अब हमको ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा कि cos के कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू 1 by 2 होती है, that is pi by 3. So we may write here cos alpha equal to cos pi by 3. Now alpha equal to pi by 3. Clear? On both sides cos will be removed. So finally what we get? We get the value of cos alpha equal to cos pi by 3. So alpha equal to pi by 3. So dear student, in this way you can see how we solve the important questions of 1 marks, or what are important questions of 1 marks from the chapter matrices and determinant. So dear student, this is all about today's class. Thanks for watching. Have a nice day. To be continue with us for more videos.